پہچانتے ہیں, رسول کے پاس آتے ہیں, ادھر سے جواب ملے گا سب کو الگ الگ پہچانتا ہوں, سب کو الگ الگ پہچانتا ہوں, کسی کو مقام نبوت پہ پہچانتا ہوں, کسی کو مقام امامت پہ پہچانتا ہوں, کسی کو منزل عصمت و طہارت پہ پہچانتا ہوں. مگر آج جب یہ انوار مقدسہ ایک چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو گئے, اس طرح سے آپس میں ذوالفقر ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں پر منزل نبوت, کہاں پر عصمت و طہارت, کہاں پر امامت. صلوات پڑھیے نا. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی عزاداران مظلوم کربلا چادر تطہیر کے نیچے پنجتن پاک اکٹھا ہو گئے. 5 سے مراد کیا ہے؟ 5 کا مطلب کیا ہے؟ علماء اسلام سے میں نے پوچھا, علماء سے پوچھا کہ اس 5 کا سے مطلب کیا ہے, اس 5 کا سے مراد کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ 5 میں معرفت حق ہے, 5 میں معرفت کائنات ہے, 5 میں الہام ہے, 5 میں ادراک ہے, 5 میں وجدان ہے, 5 منزل حقیقت کو مس کرتی ہوئی یہ 5 کی منزل ہے. کیسے پورے کے پورے اسلام کو سمیٹ دیا گیا ہے ان 5 میں؟ اس لیے کہ توحید کی طرح ہے عدالت میں 5 حرف, توحید کی طرح ہے عدالت میں 5 حرف, اسلام کی طرح ہے رسالت میں 5 حرف, ایمان کی طرح ہے امامت میں 5 حرف. کر لیجئے شمار قیامت میں 5 حرف. پوچھے کوئی یہ راز خدا اہل ظرف سے, معبود بھی ہے پنجتنی 5 حرف سے. تو یہ وہ پنجتن پاک ہیں, چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو گئے. ملائکہ مقربین نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا, ادھر سے جواب ملا ہم فاطمہ ابوہا وبالہا وبنوہا. فاطمہ ہے, فاطمہ کا بابا ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں. عجیب سی بات ہے, بڑی عجیب سی منزل فکر ہے. اس میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ہر عورت کا تعارف مرد کے ذریعے کرایا جاتا ہے. باپ کے گھر میں ہے بیٹی, باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ ہے. شوہر کے گھر میں آ گئی, شوہر کا نام آ گیا ساتھ میں. بیٹے کی ماں بن گئی, بیٹا شناخت اور پہچان بن گیا. یہ عجیب گھرانہ ہے, عجیب منزل فکر ہے. عزاداران مظلوم کربلا ایک عورت کے ذریعے تعارف کرایا جا رہا ہے. یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا بابا ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اے پاک پروردگار, یہ جو چادر تطہیر کے نیچے مرد ہیں, یہ مرد بھی کوئی معمولی مرد نہیں ہے. کائنات اولین و آخرین کے عظیم المرتبت ترین مرد ہیں. لیکن میرا رب زبان حال سے, زبان حقیقت سے اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب, آقائے دو جہاں ہو تو کیا ہوا, والی کون و مکہ ہو تو کیا ہوا, انبیاء کے سید و سردار ہو تو کیا ہوا, شفیع المذنبین ہو تو کیا ہوا, شافع محشر ہو تو کیا ہوا, وجہ تخلیق کائنات ہو تو کیا ہوا. پہچانے تو اس وقت جاؤ گے جب فاطمہ کے بابا کہلاؤ گے. توجہ ہے نا آپ کی, توجہ رکھیے گا. عزاداران مظلوم کربلا کائنات کا مولا ہے, امیر المومنین ہے, امام المتقین ہے. میرا پاک پروردگار زبان حال سے اسی حدیث قصہ کے ذریعے, اسی آیت تطہیر کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے کائنات کے مولا, علی امیر المومنین ہو تو کیا ہوا, امام المتقین ہو تو کیا ہوا, شیر خدا ہو تو کیا ہوا, امیر عرب ہو تو کیا ہوا, اسد اللہ الغالب ہو تو کیا ہوا, مطلوب کل طالب ہو تو کیا ہوا. پہچانے تو اس وقت جاؤ گے جب فاطمہ کے شوہر کہلاؤ گے. توجہ کیجئے گا عزاداران مظلوم کربلا, کائنات آدم و عالم کے عظیم ترین مرد ہے. فاطمہ زہرا کے ذریعے پہچانوائے جا رہے ہیں, تو علی کی مرتبہ, علی کا مقام, علی کی مرتبہ. عزاداران مظلوم کربلا تاریخ یہ بتاتی ہے, مولا کائنات علی ابن ابی طالب, علی کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے نہیں. شیعہ نے حیدر کرار کو مجمع ہے, آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں علی کون ہے.
अली कौन है? अली मोमिनों के मजमे में आते हैं तो अमीरुल मोमिनीन कहलाते हैं। अली मुत्तकीन के दरमियान में आते हैं तो इमामुल मुत्तकीन कहलाते हैं। अली बहादुरों के बज़्म में आते हैं तो अली शेर खुदा कहलाते हैं। अली सरजमीन अरब पर आते हैं तो अली अमीर अरब कहलाते हैं। अली रसूल के घर में जाते हैं तो दामाद पैगंबर कहलाते हैं। अली बतूल के हुजरे में जाते हैं तो ज़ौजे बतूल कहलाते हैं। अली अली अर्शे इलाही पर जाते हैं तो कभी अली को ऐनुल्लाह कहा गया, कभी अली को लिसानुल्लाह कहा गया, कभी अली को उस्नुल्लाह कहा गया, कभी अली को वजहुल्लाह कहा गया, कभी अली को यदुल्लाह कहा गया, कभी अली को नफ्सुल्लाह कहा गया। अली का तारुफ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत को कौन नहीं जानता है? अली मैदान रज़्म में आते हैं, अली कातिल मरहब व अंतर कहलाते हैं, अली फातिह बाब खैबर कहलाते हैं, अली मिंबर रसूल पर आते हैं, खतीब मिंबर सलूनी का लक़ब हासिल करते हैं, अली कुरान की मंजिलों में आते हैं, अली कुल्लु शैइन असनाहु फी इमाम मुबीन की मंजिलत पर फाइज हो जाते हैं, अली आलिमा के दरमियान में आते हैं, वमन इंदहु इल्मुल किताब की सनद को हासिल करते हैं। अली वो है, अली वो है, अली जब मैदान जंग में शुजाअत की जौहर दिखाते हैं, अली की जुल्फ़िकार हर एक की निगाहों को खीरा करती नजर आती हैं। अली की शुजाअत की जौहर देखकर फर्श वाले तो फर्श वाले, अर्श वाले भी झूम झूम कर दादे शुजाअत दिया करते हैं। माबैन ज़मीन और आसमान निदा बुलंद होती है, शाह मर्दा शेर यज़ा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जैसा नहीं है कोई तलवार अली की जुल्फ़िकार जैसी। जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। मिलती जो ऐसे वैसे को हिलती न जुल्फ़िकार, तलवार हक ने दी है मगर हाथ देखकर। तो अज़दारा ने मज़लूम करबला, कौन अली की शख्सियत को नहीं पहचानता, अली के फज़ाइल को ज़कारा ने मज़लूम करबला, वो अली इब्न अबी तालिब रसूल के मिंबर पर मौजूद है। मिंबर रसूल पर कायनात के मौला ने खुतबा इरशाद फरमाया, तमाम सहने मस्जिद कूफा नमाजियों से छलक रहा है। मौलाए कायनात ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा इरशाद फरमाने के बाद अली इब्न अबी तालिब ने एक मर्तबा जानिब आसमान देखा, जानिब ज़मीन देखा, शर्क़न ग़र्बन देखा, शुमालन जुनूबन देखा। अली इशारे करते चले जाते हैं, लोग हैरत से ये मंजर देख रहे हैं, यानी ये क्या हो रहा है? मौलाए कायनात ने फरमाया, कहा रिज़्क़ तक़सीम कर रहा हूँ। आज 1400 बरस गुजरने के बाद जब कुफ्र के फतवा की फैक्ट्री बड़ी तेज तेज चला करती है, खटाखट फतवे आते हैं, ये काफिर वो काफिर वो काफिर वो काफिर, हमने कह दिया मिंबर से अली राज़िक़, अरे फौरन क़यामत आ जाएगी। कैसे कह दिया खुदाए राज़िक़ की मौजूदगी में अली को राज़िक़। अज़दारा ने मज़लूम करबला ज़हन नशीन रखना, ममलिकत इलाहिया में मनसब इमामत का पहला ताजदार अली इब्न अबी तालिब खुदाए राज़िक़ का नुमाइंदा बनकर। अली इब्न अबी तालिब, लोगों ने पूछा या अली क्या हो रहा है? कहा रिज़्क़ तक़सीम कर रहे हैं। या अली, हैरत से आंखें फट गई, या अली क्या आप रिज़्क़ तक़सीम करते हैं? कहा हाँ बेशक हम रिज़्क़ तक़सीम करते हैं। या अली किस किस को रिज़्क़ बांट दिया? कहा सबको बांट दिया। किस किस को तक़सीम किया? या अली जमीन वालों को, आसमान वालों को, शुमाल जुनूब मशरिक़ मग़रिब, कहा सब में रिज़्क़ तक़सीम कर दिया। या अली सबको आप रिज़्क़ देते हैं? हाँ सबको हम रिज़्क़ तक़सीम करते हैं। अज़दारा ने मज़लूम करबला मस्जिद से लोग अपने घरों को वापस चले गए, बहुत बड़ा दावा आज अली इब्न अबी तालिब ने बरसरे मिंबर मस्जिद कूफा पे कर दिया। अब दूसरे दिन जब मजमा मस्जिद कूफा में आया, हर जमाने में मुनाफिकीन, मुहिब्बीन, मुक़स्सिरीन, मोमिनीन एक कसीर तादाद रही है, हर तरह के अफराद की। तो आज अगर ऐसे अफराद नजर आए तो दिल न छोटा किया कीजिए, ठीक है ना? ऐसे अफराद, हर तरह के अफराद हर दौर में मौजूद रहा। अली के जिक्र पर खुश होने वाले भी, ठीक है ना? हम नहीं कहते, मैसम ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, हुज़ैफा ने कहा, सलमान फारिसी ने कहा कि अली का जिक्र कसौटी था, मयार था, परख था। जब चार अफराद
जिक्र को छेड़ दिया करते थे, जिन चेहरों पर चमक आ जाया करती थी, जिन चेहरों पर खुशी की सुर्खी आ जाया करती थी, हम जान लेते थे वो मोमिन आले मोहम्मद है। थे, मोमिनीन भी मौजूद थे, मुहिब्बीन भी मौजूद थे, मुनाफिकीन भी मौजूद थे, मुकस्सिरीन भी मौजूद थे, काफिरीन भी मौजूद थे, मुशरिकीन भी मौजूद थे। असदारान मज़लूम करबला, आप लोगों ने कहा कि अली को आजमाया जाए। आज अली ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। असदारान मज़लूम करबला, आजमाइश अली को आजमान। शायद मैंने गुज़िश्ता किसी मजलिस में अर्ज किया था, याद नहीं आ रहा आपके यहाँ अर्ज किया था या कहीं और अर्ज किया था, कि ये अली के कायनात के मौला अली इब्न अबी तालिब का एजाज था कि जिसने जहां पर, जिस मकाम पर, जिस मिंबर पर अली को चैलेंज किया, वो वहीं पे ज़लील रुस्वा हो गया। असदारा ने मज़लूम करबला आए अली को आजमाने के लिए कि क्या वाकई अली रिज़्क़ तक़सीम करते हैं। अब ये आजमाने के लिए आए असदारा ने मज़लूम करबला। अब जब आजमाइश के लिए आए, सहले मस्जिद नमाजियों से छलक रहा है, कायनात के मौला मिंबर मस्जिद पर मौजूद है। अली ने खुतबा इरशाद फरमाना शुरू किया। अली खुतबा इरशाद फरमा चुके, तमाम सहने मस्जिद देख रहा है छलकता हुआ नमाजियों से कि अली इब्न अबी तालिब क्या करते हैं। अली ने रोज़े गुज़िश्ता की तरह एक मर्तबा जानिब आसमान देखा, एक मर्तबा जानिब ज़मीन देखा, इधर उधर देखा, हर तरफ देखकर इशारे करते जाते हैं। अली इब्न अबी तालिब ने इशारों को तमाम कर दिया। लोगों ने पूछा, या अली क्या आज भी आपने रिज़्क़ तक़सीम किया? कहा बेशक आज भी रिज़्क़ तक़सीम किया। या अली किस किस में रिज़्क़ तक़सीम किया? कहा सब में रिज़्क़ तक़सीम किया। या अली आसमान ज़मीन सब में रिज़्क़ तक़सीम कर दिया? कहा सब में रिज़्क़ तक़सीम कर दिया। या अली कोई रह तो नहीं गया? कहा कोई नहीं रह गया। या अली कोई बच तो नहीं गया? कहा कोई नहीं बचा। अब आजमाने के लिए बड़े बड़े लबादे पहनकर आए थे, लबादों के अंदर बड़ी बड़ी जेबें थी, जेबों के अंदर शीशियां थी, शीशियों में चूटियां थी। आज अली के दावे को गलत करके दिखा देंगे। असदारा ने मज़लूम करबला, हुआ क्या कि जब लबादों से शीशियां निकाली तो देखा कि हर शीशी में चूटियां थी और हर चूटी के मुंह में चावल का दाना दबा हुआ। हर एक मीज़ान पर तोला अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। ज़बान के साथ दिल बोला, ज़बान के साथ दिल बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, शजर बोला समर बोला, ज़बान के साथ दिल बोला, नारे हैदरी। तो असदारा ने मज़लूम करबला, कायनात का मौला अली इब्न अबी तालिब है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। पूरी कायनात को रिज़्क़ तक़सीम करके जब अली मौला घर में वापस आता है, असदारा ने मज़लूम करबला अपनी रोटी मांगता है शहज़ादी कौनैन फातिमा ज़हरा से। तवज्जो नहीं की आपने, दुनिया को जिसके फैज़ ने आला बना दिया, दुनिया को जिसके फैज़ ने आला बना दिया। होता था फैज़ याब वो बिन्ते रसूल से, आता था रिज़्क़ बांट के जब कायनात का, लेता था अपना रिज़्क़ जनाबे बतूल से। दुनिया को जिसके फैज़ ने आला बना दिया, होता था फैज़ याब वो बिन्ते रसूल से, आता था रिज़्क़ बांट के जब कायनात का, लेता था अपना रिज़्क़ जनाबे बतूल से। तो कौनैन की शहजादी है, सैयदतुन निसाइल आलमीन है, फातिमा ज़हरा की ज़ाते गिरामी। असदारा ने मज़लूम करबला, कायनात की तमाम तर अज़मतें, तमाम तर मंजिलतें, तमाम तर फजीलतें सजदा रेज़ हो गई शहजादी कौनैन के दर पर। मगर ज़माना फातिमा ज़हरा के दर की अज़मतों को पहचान न सका। जानते भी थे, पहचानते भी थे, मगर इसके बावजूद अपने मुफादात की खातिर इन्होंने रसूल और आले रसूल के साथ ना इंसाफियां की। अज़दारो 1400 बरस की तारीख मैं तमाम मजालिस में अर्ज कर चुकी हूँ, शर्मनाक भी है, दर्दनाक भी है और स्याह तारीख है मुसलमानों की। अज़दारा ने मज़लूम करबला फातिमा ज़हरा से फिलक को छीन लिया गया और उस वक्त छीना गया जबकि रसूल का कफन भी मैला ना हुआ था। शहजादी कौनैन दरबार में गई सवाल करने के लिए। फातिमा ज़हरा ने
دربار خلافت میں سوال پیش کیا، اور ہمارے یہاں عموماً لوگ اسے ایک سوال سمجھتے ہیں کہ سوال فدق کیا تھا دربار خلافت میں بی بی فاطمہ الزہرا نے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم طالب علموں کو یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ ظاہراً یہ ایک سوال تھا، لیکن اس کے اندر 3 سوالات پوشیدہ تھے۔ فاطمہ زہرا نے دربار خلافت میں 3 طریقے سے اپنا حق، اپنا دعویٰ دائر کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، پہلا دعویٰ جو فاطمہ زہرا نے دائر کیا وہ میراث کی بات ہے۔ احکام میراث آپ مجھ سے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میراث کی روح سے 9 ازدواج مطہرات اور 1 فاطمہ زہرا، اور ان 9 میں بھی 1 خدیجۃ الکبریٰ کے حصے کی اکلوتی مالکہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا۔ میراث کی روح سے کہا کہ لاؤ میرا حق دو۔ دربار خلافت سے ایک گڑھی ہوئی جھوٹی حدیث پیش کر دی گئی کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث کرتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، فاطمہ کے سوال کو خالی پلٹا دیا گیا۔ فاطمہ زہرا نے دوسرے طریقے سے سوال کیا، کہا کہ اچھا، میرے بابا نے ہبہ کیا تھا مجھے یہ جائیداد فدق، میراث نہیں دیتے، نہ صحیح ہبہ نامے کی روح سے دو۔ ہبہ نامہ بھی دربار میں پیش کر دیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، پہلی مرتبہ پہلے صاحب نے ہبہ نامے کی روح سے فدق دے دیا، لیکن آنے والے دوسرے صاحب نے کہا کہ اگر فدق فاطمہ کو دے دیا تو جنگی اخراجات کہاں سے ادا کیے جائیں گے۔ ہبہ نامے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چاک کر دیا، پرزے کر کر دربار میں زمین پر اس ہبہ نامے کے ٹکڑے گر گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، نہ میراث کی روح سے ملا فاطمہ کو حق، نہ ہبہ کی روح سے ملا۔ تیسرا سوال جو شہزادی کونین نے کیا وہ خمس کا کیا۔ کون نہیں جانتا کہ فاطمہ زہرا کے لیے، اس گھرانے کے لیے پروردگار عالم نے ایک حق مقرر کیا ہے۔ کون سا حق؟ سب جانتے ہیں نا کہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلمانوں نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، ہم حیوانوں کی مانند تھے، آپ نے ہمیں کلمہ پڑھا کر انسان بنا دیا، اخلاقیات، دین، شریعت سکھا کر ہمیں مسلمان بنا دیا، صاحبان ایمان میں تزکیہ نفس کر کے شمار کرا دیا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے احسانات کا بدلہ اتار نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ، جس کے پاس جو کوئی بھی دولت دنیا تھی، کسی کے پاس کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی باغ کا کاغذات، کسی کے پاس کوئی اشرفی، جو جس کے پاس دولت دنیا تھی وہ لے کر آیا، رسول کی خدمت میں رکھتا گیا، رسول کے قدموں میں ڈھیر کرتا گیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کا اجر نہیں دے سکتے ہیں، یا رسول اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ سرکار رسالت مآب وما ينطق عن الهوى کا مصداق، وحی رب کے بغیر کلام نہیں کرتا، منتظر وحی پروردگار ہے۔ اور جب وحی پروردگار آئی، جبرائیل امین نے کہا بعد تحفہ درود و سلام، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو اے رسول، میں تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قربہ سے مودت رکھو۔ عزاداران مظلوم کربلا، جتنے بھی موجود تھے، جب آیت نازل ہو گئی، سرکار نے پڑھ کر سنا دی، بزم رسالت میں جتنے بھی افراد موجود تھے، انہوں نے دست ادب جوڑ کر پوچھا، کہا سرکار بتائیے یہ اہل قربہ کون سے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، عزاداران مظلوم کربلا، میں صرف تشیع کی تواریخ کا حوالہ نہیں دیتی ہوں، بلکہ صحیح مسلم کو دیکھ لیجئے، صحیح بخاری کو دیکھ لیجئے، تفسیر تبری کو دیکھ لیجئے، تفسیر زرقانی کو دیکھ لیجئے، اس دور کی تفسیر حقانی کو دیکھ لیجئے۔ تمام علماء اہل سنت، تمام راوی، تمام مفسرین، تمام محدثین اس امر پر متفق رہے۔ لوگوں نے پوچھا، مسلمانوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربہ کون سے ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے۔ آغازی گفتگو میں نے عرض کیا تھا نا، بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، انہی 5 کا تذکرہ کیا گیا، انہی 5 کا تعارف۔ بس میں ملائکہ میں
फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। अज़दारा ने मजलूम करबला तो अजर रिसालत कुर्बा की मोहब्बत खुशा नसीब पर शहज़ाद हुसैन पर परवरदिगार आलम हमारी और आपकी अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए। तमाम आलम इस्लाम में न मसले के फिक्र की बात है, न मकतबे फिक्र की बात है, न फिरक़े वारियत की बात है, न इंतशार की बात है। बात मगर हक़ी है, इसलिए ज़बान पर जरूर आएगी। मज़लूम करबला याद रखिएगा, रसूल का कलमा सब पढ़ते हैं, रसूल के लाए हुए दीन पर सब अमल करते हैं, रसूल की बताई हुई नमाज सब पढ़ते हैं, रसूल की बताई हुई अजान सब देते हैं, रसूल का लाया हुआ कुरान सब पढ़ते हैं। अज़दारा ने मजलूम करबला मगर अजर रिसालत सिर्फ शिया ने हैदर कर्रार देते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या अली, मशरूदी इमाम ज़माना बुलंदर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो है ना आपकी। अज़दारा ने मजलूम करबला अजर रिसालत मुसलमानों तुम पर वाजिब है, हुक्म परवरदिगार के तहत वाजिब है। तो अज़दारा ने मजलूम करबला अजर रिसालत, तवज्जो रखिएगा, खुम्स सादात कलाम का हक है। अज़दारा ने मजलूम करबला। अब बात आ गई फिदक तक। फिदक कहां से आया? खैबर सन 7 हिजरी में फतह हो गया। खैबर फतह हो गया, एक जुमले में पूरी तारीख सामने आ गई है, ठीक है ना। एक खैबर की फतह से 40वें दिन के तस्करे से 39 दिन की भी तारीख याद आ गई है, सबको याद है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगी। जब भी माशाल्लाह सामईन मुझसे ज्यादा इल्म और फहम की मंजिलों पर फायज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा। अज़दारा ने मजलूम करबला अल्लाह के रसूल ने सबको आजमाया। देखिए, अगर परवरदिगार का रसूल, अगर अल्लाह के रसूल पहले ही दिन अली को दे देता अलम, तो क्या होता? सब यही कहते ना, अली को दे दिया, हमको भी देके देखा होता, हमको देते हम भी दिखाते, हम भी बड़े बहादुर, हम भी बड़े शुजा, हम भी फतह करके आते खैबर, हम भी फातह खैबर कहलाते। मेरे रसूल की मसलहत मेरे रसूल जाने, परवरदिगार की हिकमत मेरा रब जाने, लेकिन तारीख ने यही बताया, मेरे रसूल ने सबको चांस दिया, मेरे रसूल ने सबको मौका दिया, किसी को कहने का मौका न मिले, किसी को एतराज करने का मौका न मिले। अज़दारा 39 दिन बहुत हुआ करते हैं, सरकार एक एक को अलम देकर भेजते रहे। जब अलम लेकर सुबह को जाता, बड़े दावे करके जाता, जब शाम को वापस आता, किस शान से आता कि न सर पर अमामा होता, न पैरों में जूता होता। तवज्जो है ना आपकी? अज़दारा ने मजलूम करबला। और जब आते जबकि शाम को वापस आते ना, रसूल पूछते क्या हुआ? तुम तो खैबर को फतह करने गए थे, क्या हुआ? खाली हाथ क्यों आ गए? तो ये कहते थे या रसूल अल्लाह क्या करें, बड़े मजबूर हैं। खैबर के यहूदी बड़े बहादुर हैं, बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, बड़े नामी गिरामी हैं, अरे बहुत बड़ा किला है, बड़ी मोटी फसीलें हैं, ऊपर से मरहब का मस्त ललकारता भी है। अज़दारा ने मजलूम करबला 1400 बरस से हम शिया ने हैदर कर्रार पर एक एतराज है, ये फजाइल पढ़ा करते हैं, फजाइल किया करते हैं, फजाइल पढ़ा करते हैं। अज़दारों, मैं तो आराम से बड़े प्यार और इत्मीनान के साथ पूरी मिल्लत इस्लामिया को मुखातिब करके कहती हूँ कि ना यहाँ पर मैं अपने फजाइल पढ़ती हूँ, न किसी के पढ़ती हूँ, न किसी का तस्करा, न किसी का तस्करा। हम तो रसूल के फजाइल पढ़ते हैं, खानदान रिसालत के फजाइल पढ़ते हैं, जिनके एहसानात हैं, जिनका अजर रिसालत हम पर वाजिब है, हम उनके फजाइल पढ़ा करते हैं। हमको सब काफिर कहा करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता जो यहूदियों के फजाइल पढ़ते थे। उनको भी तो कोई कुछ कहे ना। रोज वापस आ जाते थे, या रसूलल्लाह, बड़े बहादुर हैं, बड़े नामी गिरामी हैं, या रसूलल्लाह, बड़ा मोटा किला है, बड़ा मजबूत फसील है, या रसूलल्लाह, हम फतह याब नहीं हो सकते, या रसूलल्लाह, हम खैबर को पता नहीं कर सकते। आते थे ना, उनके फजाइल पढ़ते थे। 39 दिन तक मेरा रसूल हुज्जत को तमाम करता रहा, रहमतुल आलमीन देखता रहा, आजमाता रहा, किसी को शिकायत का मौका न रहे। जब 39वां दिन गुजर गया, सरकार ने इरशाद फरमाया, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, होगा, खुदा रसूल को दोस्त सकता होगा, खुदा रसूल उसे दोस्त सकते होंगे। अज़दारा ने मजलूम
करबला मुसलमानों के दिलों में उम्मीदों की शम्में जाग उठे। अरे कल आएगा, 40वां दिन होगा, अलम इस्लाम का मिलेगा, हम मर्द करार पाएंगे, हम कर्रारे गैर फरार बन जाएंगे, हम लश्कर इस्लाम के अलमदार बन जाएंगे, खुदा रसूल के महबूब बन जाएंगे। अज़ादारों सोचो तो सही, 39 दिन तक अपने आप को आजमाने के बावजूद भी 40वें दिन दिल में उम्मीदों की शम्मा क्यों जल रही थी? ये उम्मीदों की शम्मा इसलिए जल रही थी कि अबू तालिब का बेटा नहीं था। मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली, काबे का गौहर अली अली, काबे का गौहर अली अली, सहरा का शौहर अली अली, सहरा का शौहर अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, हम सबका मौला अली अली, हम सबका मौला अली अली, हम सबका आका अली अली, हम सबका आका अली अली, नारे हैदरी हैदरी तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली, अली अली, अली अली, नारे हैदरी हैदरी, सुने मौलाए कायनात बगैर से बुलंद सलावत। तवज्जो रखिएगा, ज़ुलाल मज़लूम करबला, कायनात का मौला अली इब्न अबी तालिब खैबर में मौजूद नहीं था। अली को छोड़ा था सरकार ने मदीने में, मुसलमानों को लेकर पहुंचे थे खैबर को फतह करने के लिए। मुसलमानों को बड़ा इत्मीनान है, अबू तालिब का बेटा है ही नहीं, अली इब्न अबू तालिब है ही नहीं, हम ही का 40वां दिन होगा, हम ही लश्कर इस्लाम के अलमदार बन जाएंगे। तारीख ही कहती है, मैं नहीं कहती, तारीख ही कहती है। मुसलमानों ने ये रात बड़ी बेचैनी में, बड़ी इस्तराब में, बड़ी बेकरारी में गुजारी। अज़ादारान मज़लूम करबला टहल टहल के गुजारी, टहल टहल के सरकार के खैमे के बाहर। इनमें से कुछ लंबे कद के भी थे, वो और ऊंचा ऊंचा करके दिखाते थे अपने आप को ताकि सरकार को हम नजर आए। हम जाएंगे लश्कर इस्लाम का अलम लेकर और मर्द बन जाएंगे, कर्रार गैर फरार बन जाएंगे, खुदा और रसूल के दोस्त भी बन जाएंगे, खुदा और रसूल हमें महबूब रखेगा। अज़ादारान मज़लूम करबला पूरी शब मुसलमानों ने बेकरारी में गुजारी। जब सुबह नमूदार हुए, जब सुबह नमूदार हुए, अल्लाह के रसूल सरकार रिसालत मार खैबर रिसालत से बाहर निकले। कहा कि या रसूल अल्लाह, आज किसको लेंगे लश्कर इस्लाम का अलम? एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने शुमालन देखा, एक मरतबा जुनूबन देखा, इधर उधर देखा। कहा ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब, मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? मुसलमानों ने हैरान होकर पूछा। कहा कि या रसूल अल्लाह, अली को खुद मदीने में छोड़ा, हम कहाँ से बताएं कि अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने जानिब आसमान देखा, दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया। कहा परवरदिगार आलम, लश्कर इस्लाम की 39 रोज से हजीमत हो रही है। परवरदिगार आलम, आज 40वां दिन आ गया। या रब्बुल आलमीन, तुझसे मांगता हूँ फतह नुसरत। या रब्बुल आलमीन, भेज दे अपनी फतह नुसरत को। अज़ादारान मज़लूम करबला जिब्राइल अमीन आए, हदीस कुदसी लेकर आए। नादे अली जुज़्व कुरान नहीं है, नादे अली हदीस कुदसी है। अल्लाह के रसूल से जिब्राइल अमीन ने कहा, परवरदिगार आलम कह रहा है, पुकारो अली को मदद के वास्ते। नादे अली मज़रुल अजायबुल गरायत कहकर नादे अली का व्यक्त करके अली को मदद के वास्ते पुकारो। अज़ादारान मज़लूम करबला, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है सरकार ने लश्कर इस्लाम के सामने जिब्राइल अमीन ने जब ये वही परवरदिगार पहुंचाया होगा, एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने कहा होगा, परवरदिगार ये दीन तेरा है, ये मजहब तेरा है, ये इस्लाम तेरा है, ये कुरान तेरा है, ये दीन तेरा है, ये शरीयत तेरी है, ये कलमा तेरा है। फतह होगी तेरे नाम की होगी, नुसरत होगी तेरे नाम की होगी, रहती दुनिया तक नाम रहेगा तेरा रहेगा। मैं तुझसे मदद मांगूंगा, मैं अली को मदद के वास्ते क्यों पुकारूं? अज़ादारान मज़लूम करबला, उधर अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से मदद मांगी होगी, उधर से वही परवरदिगार आई होगी। नहीं है मेरे हबीब, नहीं है मेरे हबीब, पुकारो अली को मदद के वास्ते पुकारो। ऐसे नहीं पुकारना, नादे अली मज़रुल अजायबुल गरायत पढ़कर अली को मदद के वास्ते पुकारना, ताकि रसूल का अली को पुकारना सुन्नत